ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈਲ, VI ਆਦि ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 8 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 5 ਅਰਬ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 66 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਸੰਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 50% ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੋ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਥੰਮ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आदरणीय सभासदों और मेरे प्रिय साथियों, सादर अभिनंदन। आज का विषय है ड्रग एब्यूज अर्थात नशीली दवाओं तथा मादक पदार्थों का दुरुपयोग। मैंने इस विषय को बोलने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि इन दिनों ड्रग्स का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, जो हमारे देश और समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। और आज मैं आप सबको ड्रग्स से होने वाले कुछ दुरुपयोगों के बारे में बताने जाने वाली हूँ। ड्रग्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे हेरोइन, अफीम, चरस, गांजा आदि, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह उसके लिए कितना हानिकारक है। वह इसके लिए कुछ भी कर सकता है। और ड्रग्स केवल दुनिया भर में ही प्रचलित है, बल्कि हमारे भारत देश में तो इसकी स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। ड्रग्स न केवल ड्रग्स लेने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ड्रग्स लेने के कई कारण हैं। कोई व्यक्ति इसलिए लेता है क्योंकि उसके दोस्त ऐसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। कुछ लोग तनाव से छुटकारा पाने के लिए इसका सहारा लेते हैं और कुछ लोग इसे साइड स्टेटमेंट मानते हैं। कुछ लोग इसे इसलिए लेते हैं क्योंकि वह इससे
हैं। धन्यवाद। देखकर बाधा विविध पर बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख को पछताते नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज मेरा यहाँ बोलने का विषय है कि व्यक्ति का अधिकार सिर्फ कर्म करना है। उसका कोई भी अधिकार नहीं है कि वह कोई फल में इच्छा रखे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जिन्होंने आप सभी ने मुझे आपके समक्ष अपने विचार पेश करने का मौका दिया। अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने विचार व्यक्त करती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म कलाकुल भूर्मा ते संगोस्तवा कर्मणि। जब रणभूमि में महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें यह श्लोक देते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि वह अपने गुरुओं को मारकर एक अच्छा जीवन कैसे व्यक्त करेंगे, तो श्री कृष्ण जी उन्हें उसके जीवन का गुण रहस्य समझाते हैं, उसे उसके धर्म और कर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार सिर्फ कर्म करना है, फल में इच्छा नहीं रखना है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवद गीता के पाठ 4 वर्ष 47 में से यह श्लोक लिया गया है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने कर्म के फल के प्रति सोचता रहेगा तो क्या होगा? वह अपने द्वारा किए गए कर्मों में पूरा ध्यान नहीं रख पाएगा, उसकी रुचि अपने कर्म करने में नहीं रह जाएगी, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे एक राही लंबे रास्ते पर निकला हो और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखे तो क्या होगा? वह अपना रास्ता भटक जाएगा, एक एक कदम चलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हमें यही सिखाते हैं कि हमें सिर्फ कर्म करना है, अच्छे कर्म करने हैं, आगे बढ़ना है, फल की इच्छा नहीं रखनी, क्योंकि फल तो एक दिन मिलना ही है। हमें बस आगे बढ़ना है, अच्छे कर्म करने हैं। दूसरी ओर देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति कर्म के फल के प्रति हमेशा चिंतित रहे तो क्या करेगा? वह अपने जीवन की तुलना दूसरे व्यक्तियों से करेगा। अगर दूसरे व्यक्ति को इतनी आसानी से सफलता मिल गई हो तो ऐसी सोच उसे निराश कर देती है। वह हमेशा यही सोचेगा कि मुझे अभी तक कुछ क्यों नहीं मिला, मैंने इतने प्रयास किए लेकिन मुझे अभी तक कोई सफलता क्यों नहीं मिली। ऐसी सोच उसे बहुत निराश करती है। वह आखिर में कर्म करना छोड़ देता है, आगे बढ़ना छोड़ देता है, निराश हो जाता है, कोशिश करना छोड़ देता है। इसकी बजाय अगर वो प्रयास करे तो धीरे धीरे एक दिन अवश्य सफल होगा। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, इससे यही सिद्ध होता है कि व्यक्ति को सिर्फ कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, फल एक दिन मिलना ही है, अच्छे कर्मों का भी और बुरे कर्मों का भी। हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं ताकि उस भगवान की दृष्टि में हम सभी एक अच्छे इंसान बन सके। अब अपने विषय को समाप्त करते हुए 2 पंक्तियां मैं आप सभी के सामने कहना चाहूंगी। आज करना है जिसे, उसे करते हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो, कर दिखाते हैं वही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यह सौभाग्य सौंपा। धन्यवाद। आर्य वही जो सनातनी, आर्य वही जो उत्तम गुणी। गर्व कहो हम आर्य। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मान्य शिक्षागण, मुख्यातिथिगण एवं मेरे प्रिय साथी, सुप्रभात। आज मेरे बोलने का विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका। आर्य समाज क्या है? मैं बताती हूँ। यह एक ऐसा समाज है जिसने
एवं कुटुंब, जिसमें वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी और वहीं कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। इसीलिए वसुधैव कुटुंब का संपूर्ण शाब्दिक अर्थ पृथ्वी ही परिवार से है। यदि हम एक परिवार की बात कर ही रहे हैं तो हमें इसका सही अर्थ भी पता होना चाहिए। एक परिवार होने का अर्थ होता है ज्ञान और अनुभव को साझा करना। एक परिवार होने का मतलब होता है सहयोग और संचार करना। एक परिवार होने का मतलब होता है बिना किसी झिझक के एक दूसरे से मदद लेना अथवा उन्हें अपनी मदद प्रदान करना। एक परिवार होने का मतलब होता है एक दूसरे की मुश्किल घड़ियों में एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े होना। और यह परिवार जिसकी हम बात कर रहे हैं वे और कोई नहीं अपितु हमारी धरती माता ही है। और इसकी सुरक्षा के लिए हमें सहयोगपूर्ण होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत ही केवल ऐसा देश है जिसने सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने हृदय में रखा है। उसने सदैव वसुधैव कुटुंबकम को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरों के दौरान विदेश मंत्री के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह बात भी वसुधैव कुटुंबकम धारणा के लिए अनुरूप है। और विदेश मंत्रियों को हमारे देश के नेताओं द्वारा किस प्रकार का व्यक्तिगत स्वागत मिलता है, यह बात भी वसुधैव कुटुंबकम धारणा के लिए अनुरूप है। भारत की संस्कृति है जो सदैव कहती है वसुधैव कुटुंबकम। भारत ने सदैव व्यापार, विचार, विनिमय और विज्ञान के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया है। जब इस संसार में माता रानी की सवारी शेर, श्री गणेश जी की सवारी चूहा, कार्तिकेय जी की सवारी मोर और देवों के देव महादेव की सवारी के गले में का सांप और उनके सामने बैठे नंदी जी, जब ये 5 कट्टर दुश्मन एक साथ इस पृथ्वी पर रह सकते हैं, क्योंकि जब शेर छूट जाए तो बैल को खा जाए, मोर छूट जाए तो वह सांप को खा जाए और जब सांप छूट जाए तो वह चूहे को खा जाए। इसीलिए तो हुए कट्टर दुश्मन, परंतु फिर भी यह प्रेम पूर्वक इस धरती पर रह रहे हैं। तो क्या हम इंसान नहीं रह सकते? हम भी रह सकते हैं जब हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने हृदय में रखें, ना कि इसे केवल कहें अपितु इसे अपने जीवन में भी लेकर आए। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। जब शिकागो की धरती पर स्वामी विवेकानंद जी पहली बार पहुंचे, उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। उनके यह 5 शब्द इतने मर्मस्पर्शी अविस्मरणीय इसलिए बन गए थे क्योंकि यह शब्द किसी व्यक्ति के मुख से नहीं अपितु सनातन धर्म के हृदय से निकल रहा था। उन्होंने कहा था अयम निजात मोदि गणना लघु चेता सामुदाय चेता नाम वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह मेरा है, यह तेरा है, यह ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब, यह सब एक लघु सोच है। उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण विश्व एक परिवार है और हम सब और सभी प्राणी और सभी जीव जंतु इसी परिवार के एक सदस्य हैं। इसीलिए एक बेहतर समाज, एक बेहतर भविष्य और एक अच्छी दुनिया का निर्माण करने के लिए हमें इसे आगे लेकर जाना होगा। धन्यवाद। भारत में हर भाषा का सम्मान है, पर हिंदी ईश्वर का वरदान है। जी हाँ, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरी ओर से आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं जिस विषय के बारे आपको बताना चाहती हूँ वह है राष्ट्रीय अस्मिता का आधार हिंदी। जी हाँ, हम समस्त भारतवासी एक हैं और हिंदी हमारे गौरव का प्रतीक है। हिंदी भाषा वह ही है जो विविधताओं से भरे भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। जी हाँ, हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। देश के किसी भी नागरिक से अगर अपने दिल और मन की बात किसी भाषा में सहजता से की जा सकती है तो वह है हिंदी। जी, हिंदी का सम्मान हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया
जाता है। 1957 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी के राष्ट्र की आम सभा को संबोधित किया था। सन 1900 में पहली बार प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को पहली हिंदी कहानी माना गया था। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए कहती हूँ कि भारत माता के माथे की बिंदी, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, महानुभावों, मैं आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वानों की सभा में मुझे अपने विचार धर्म का वास्तविक स्वरूप रखने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। धर्म का स्वरूप, जब मनुष्य पैदा होता है तब धर्म उसके साथ रहता है। धर्म का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि धर्म में जो स्वाभाविक है उसकी अभिव्यक्ति धर्म है। धर्म का अर्थ है आत्मा को
कंपटीशन में वही विद्यार्थी कंपटीशन से वही विद्यार्थी करते हैं जो ईमानदारी से तैयारी नहीं करते हैं। रिजल्ट बन रहा है, निर्णायक मंडल बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक बात विशेष रूप से कहूंगी, समय सीमा का बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, समय सीमा का उल्लंघन किया, समय से पहले ही अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया। इस समय मैं सभागार में उपस्थित आपको मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर सतीश शर्मा जी से। सतीश शर्मा जी सभागार में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। सर, हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दर्शकों, प्रोफेसर सतीश शर्मा जी उप चेयरमैन है करोड़िया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन संगोल। आर्य कॉलेज लुधियाना में इन्हें करीब 30 वर्षों का अनुभव है। लगभग 7 वर्षों से डीएवी कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सर। आपसे निवेदन है कि आप आज के कार्यक्रम के लिए 2 शब्द कहकर हमें आमंत्रित करें। धन्यवाद। मैं सब तो पहले रोशनाल आर्या जी तो स्कूल के मैडम प्रिंसीपल मुबारकबाद देना वा जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। अज जो असी समाज के अंदर देखते हैं तो काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं कि साढ़े समाज के अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ जो साढ़े समाज की बेसिकली बुनियाद सी जो हिंदुस्तान के सारे धर्मां ने जिस दे उत्ते विशेष जोर दिता सी वो घट रही ने साडियां मॉरल वैल्यूज़। तो तुसी एक बहुत अच्छा उपराला किया। इट इज़ बेसिकली चेन ऑफ इवेंट्स। तुसी अलग अलग इंस्टीट्यूशनस दे विच जाके अलग अलग स्कूलों के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो कि वो अपने आप को मौजूदा हालात। मैं कुछ स्पीकर्स को सुनिया जिन्होंने इंटरनेट के बारे दसिया, कुछ और बच्चे से जिन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु दसिया, कुछ और व्यक्ता से जिन्होंने हिंदी भाषा के महत्व को दसिया। एक बहुत ही एप्रीशिएबल काम है तुहाडा, क्योंकि इस संस्था गुजरखंड कैंपस के तो बहुत बारी आए, शायद लगभग जो मैं कहा 50 साल तो ही आते रहे हैं। बड़े सरना साहब का सानू बहुत आशीर्वाद होता है, कट्ठे काम भी किया, टीचिंग के भी, यूनियन के भी। तो वो काफ़ी सारिया मीटिंग्स जड़ियाँ ने इन्हों के कैंपस के ही होंदियां सीगियां। फिर जो मैं दिल्ली सीगा तो जो मैनेजिंग कमेटी फैडरेशन मैनेजमेंट फैडरेशन की मीटिंग्स भी इतने तो बड़े सरना साहब जो फोन कर देंगे सीगे तो सानू फिर आना ही पैदा होंदा सीगा। असीं कहना नहीं कि सर तुहानूं तां ना करनी औखी आ, इत्थों दफ्तरों आना भी औखा है। तो मैं एक माफ़ी जरूर रोशनलाल जी आर्या जी को भी मंगता हाँ। इन्होंने मैंने 2 या 3 बार किया अलग अलग डेट्स से, तब नॉट मैं आई वाज जस्ट स्ट्रक विद सम रीजन और द अदर। तो मैं आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट यू आर स्टिल काइंड इनफ कि चलो 26 तरीक को साडा प्रोग्राम है। तो मैं कहा मैं 26 में जरूर आवागा। तो मैडम प्रिंसीपल थोड़े बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन है, इन्होंने बड़े प्यार के नाल बड़ी कंसनट्रेशन के नाल सारे
ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਵੀ ਮਸਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਾਊਡ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੋਰਟੀਅਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ, ਰੋਸ਼ਨਲਾਲ ਜੀ, ਆਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਡੀਅੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਲਪ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ DAV ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 1 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਈਓ। मैं तो जी 9:30 बजे तैयार होकर बैठ गया सी। अब बस बेटे कि मैं उस हिसाब से चले जाऊँगा। एक बच्चों को सर थोड़ा जहा फ्लोरा एंड फौना पेड़ों के महत्व बारे जरूर दसीए। असी वी शुड एनकरेज दैम। तुसी जिथे भी प्रोग्राम शुरू कर जाया करो। मेरी एक प्रार्थना हैगी आ, सरना साहब बैठे ने इतने ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਪੌਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਬਸ। ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਏਰੀਆ where governments are worried. It may be government of Punjab, it may be government in Delhi, it may be government in US or anywhere. क्योंकि पर्यावरण जोड़ा है इस वे बहुत बड़ी एक चुनौती बन रहा है। और खास करके उन्हें असी बच्चों इस एज के इन्हों के थ्रू भी मैसेज देंगे अपने जोड़े और इन्हों के स्कूल मेट्स ने नेबरहुड के है तो एक अच्छा संदेश जाऊँगा। तो आखिर मैं फिर थोड़ा सब का बहुत धन्यवाद करता हाँ कि तुसी मैंने इत्थे आउण दा मौका दिता। थैंक यू सो मच एंड आई विश and pray for your bright future of all the students, of all the participants, of all organizers. Thank you so much. हम बातें करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की। हम बातें करते हैं इस धरती पर अच्छे ढंग से रहने की। और जिस विषय पर आपने हमारा ध्यान ले जाने की कोशिश की है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां आप अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित कर रहे थे, बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे, वहां पर सच में ये विषय सोचने वाला है कि जिस वातावरण में हम रहते हैं उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी हमारी है। और ये जिम्मेदारी अगर हमारा कर्तव्य बन जाए तो यह धरती सच श्यामला हो जाएगी। मैं मोहिनी जी को देख रही हूँ और मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा। आपका भी स्वागत है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ।
स्वागत कीजिए आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सरदार गुरविंदर सरना जी का। गुरविंदर सरना जी लगभग 10 वर्षों से गुरु नानक खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जनरल सेक्रेटरी हैं तथा 7 अन्य विद्यालयों के कार्यभार को भी उन्होंने बड़ी कुशलता से निभाया है। मैं अभी आपका परिचय करा चुकी हूँ, लेकिन 2 शब्दों की मोहताज हूँ। सर, आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आइए और हमें 2 शब्दों से अनुग्रहित कीजिए। आज गुरु नानक खालसा सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के बेड़े विच मैं समझदा साढ़े बड़े धन सुभाग है जिथे इन्नियां वड्डियां नामियां कमाई करने वाली शख्सियतां ने अपने चरण पाए ने। प्रोफैसर सतीश शर्मा जी जिहड़े कि मेरे पिता जी दे प्रोफैसर गुरमीत सिंह जी दे समकाली ने, बड़े नेड़े रहे, उन्होंने मित्र इकट्ठे काम किया। अज तुहाडा आना साडे लई सर एक बड़ा बड़ा आशीर्वाद है। अज बड़े मान नाल असीं कर रहे कि गुजर खान कैंपस दे वेड़े बड़े सालों बाद तुसीं पधारे। साडा प्रिंसीपल दावर साहब आके आर्या नवा शहर तो तुसीं आए हो सर, बड़े भागा वाली धरती है, कमाई करती है तुसीं। आज तुहाडा भी बड़ा जी आया। बाकी पतवंते सज्जन और खास करके मैं रोशना लारिया जी का धन्यवाद करांगा कि तुसी ये बेड़ा जड़ा है सानू मान दिता। इन्हां बच्चियां नूं लिआंदा सारे लुधियाने तो इकट्ठे हो के जिहड़े आके अपनी स्पीकिंग स्किल्स का जिन्होंने साडे सामने उदाहरण रखा। और मैं अखीरले 3-4 बच्चियां नूं सुनिया और बड़ा मान फकर महसूस किया कि कितनी मेहनत इन्होंने इन्हों के टीचर साहबान ने की है, जो कि किन्ने कॉन्फिडेंस नाल आके इन्हों बच्चियां ने आके साडे सामने अपने विचार पेश किए। मैं रोशन लारिया जी तुहाडा बहुत तय दिलों धन्यवादी है कि जिहड़ा तुसीं मंच दिता है इन्हों बच्चियां नूं, इहदा पता नहीं इन्हों की जिंदगी के कित्थे कित्थे जाके असर पैना है। We have no idea. But this certainly is imbibing a seed in them, which the tree will grow one day. And I know, जिवें Professor Satish Sharma जी ने कहा, ये जिहड़े पौधे लगाने ने वो एक सिंबॉलिक है कि ये भी जिहड़े बच्चे ने ये साडे पौधे ने ते जिहड़ा तुसीं इन्हां नूं लगाया अज दिता है मुड़ ये बड़ा फलेगा। ते इस दे नाल मैं आप लोगों को बहुत बधाई दिंदा। और मैं बच्चों को एक खास कर बच्चों तुहानूं क्या अज जिन्ने तुसीं 23-24 बच्चे इत्थे आके प्लेटफॉर्म ते खड़े हुए हो, बच्चियों तुसीं सारे विनर्स हो। यू ऑल आर विनर्स। ये घटना समझना मैनू पुछो बड़ी दलेरी चाहिए है, बहुत दलेरी चाहिए है पढ़ के आना, फिर सारे के सामने खड़े होकर माइक स्पीच देना सौखा काम नहीं है। मैनू बहुत साल लगे सी, बहुत साल लगे सी इस चीज़ को और डर चों निकलन का। जिहड़ा तुसीं अज डर कढ़िया ना, ये डर ने तुहानूं एक विनर बनाया है। बाकी जज साहबान ने तो जिहड़े प्राइज देने हैं चलो वो उन्होंने है, पर मेरे वास्ते तुसीं सारे के सारे 23-24 बच्चों तुसीं विनर्स हो। और इस चीज़ को इत्थे तुसीं रोकना नहीं है, अगे चलना है, इस चीज़ को अगे लैके जाना है। चंगी पढ़ाई करनी है, ना कि चंगी पढ़ाई करनी है, अच्छियां किताबां पढ़नी है। क्योंकि यह जिहड़े विचार तुसीं अज रखे ने ये बड़े वडमुल्ले विचार ने, बहुत कीमती विचार ने। जिन्ना इन्हां विचारां नूं तुसीं सामोगे और बच्चियों खास करके तुहाडे वास्ते कहते तुसीं एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन दोगे ना, यू मेक द नेशन एजुकेटेड, बिकॉज वन गर्ल चाइल्ड इज गोइंग टू एजुकेट द होल फैमिली एंड मेक इट मच मोर देन फॉर अ बॉय। आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। सो इस चीज़ के उत्ते अपने विश्वास रखना है और मेहनत करनी है, अगे जाके और पढ़ना है और जिंदगी अपने पैरों के उत्ते खड़े होना है। एक गल मैं तुहानूं सारे टीचर साहबान भी इत्थे बैठे, पिताजी को भी, क्योंकि साडा गर्ल्स कॉलेज से
ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਟੀਚਰ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖੋ, ਸਕੂਟਰ ਸਿੱਖੋ, ਕਾਰ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ। This is going to be a real empowerment। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। परम आदरणीय सरदार जी एस सन्हा जी, डॉक्टर स्टीव शर्मा जी, मेरे अन्य पदाधिकारी साथी, वेद प्रचार मंडल और प्राध्यापकगण और मेरे बहुत ही प्यारे विद्यार्थी, दो एक बातें जो मेरी ड्यूटी का हिस्सा है वो विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं। सबसे पहले 24 प्रतिभागी यहां पे पहुंचे और सबका विषय बिल्कुल एक से डिफरेंट था। ये अगर कोई निर्णायक मंडल ने कोई किसी विद्यार्थी की कोई कमी लिखी हो, रखी हो, तो मुझे लगता है कि वो विद्यार्थी की कमी नहीं है, वो उसको सिखाने वाले प्राध्यापक या उसके परिवार के मेंबर या जिससे भी वो सीखा है उसकी कमी हो सकती है। पहली बात, जब भी बोले, जितना भी बोले, समझ कर बोले कि आप क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे शब्द इतने भारी भरकम बोले गए कि जिनके बारे में बच्चों को मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। विषय जैसा भी है, पहले उसका अच्छी तरह चिंतन मनन बच्चे को करवाया जाए, चाहे समय आपके पास एक दिन ही क्यों ना, 2 दिन ही क्यों ना, आधा पौना घंटा उसके ऊपर बताया जाए कि तुम्हें मैं कहने क्या चाह रहा हूं, मुझे पता क्या है, ओम क्या है, हिंदी भाषा क्या है, धर्म क्या है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। और हम सब जानते हैं, और प्राध्यापक मंडल तो विशेष रूप से जानता है कि शब्द ब्रह्म है। इनका उपयोग हमेशा सदुपयोगी होना चाहिए, सीमा में होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। बच्चे डर गए, ये उम्र का प्रभाव हो सकता है, समय से पहले समाप्त कर दिया, ये उनकी कम प्रैक्टिस का स्वभाव हो सकता है। ये बड़ी छोटी छोटी बातें, जैसे सन्ना साहब ने कहा यू आर ऑल विनर्स, ये पक्का है। परिस्थितियां देखिए, कोई बच्चा बहुत बड़े स्कूल से आया है, कोई बहुत बच्चा बहुत छोटे स्कूल से आया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बाकी अपने साथियों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन आप ये जरूर अपने माँ बाप से पूछिए कि वो किन स्कूलों से पढ़े। वो ऐसे स्कूलों से पढ़े हैं जहां टाट बिछाया जाता था, टाट, दरी नहीं, टाट, अपनी बोरी स्वयं ले जाना, एक लकड़ी की तख्ती जिसको गांची के साथ
तैयार करके सुबह हैंड राइटिंग के लिए स्कूल में ले जाना, ऐसे स्कूलों से पढ़े। कोई भी विद्यार्थी अपने आप को कमतर मत समझे। ये जो प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, ये प्रतियोगिताएं आप में एक जैसा स्वभाव, एक समरसता, एक समभाव के लिए करवाई जाती है। यहाँ पे स्कूलों की बिल्डिंगें कोई मायने नहीं रखती। जो व्यक्तित्व इस वैदिक प्रतियोगिता के पीछे है, उस व्यक्तित्व के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि लगभग आधी सदी, मैं 50 सालों की बात कर रहा हूं, हो गई है ऐसे व्यक्तित्व को आप बच्चों के बीच में विचरण करते हुए। आप समझिए, आर्य परंपराओं को आप तक पहुंचाते हुए, आर्य सभ्यता को आप तक पहुंचाते हुए। विद्यार्थियों, आपने आते ही एक नाम जरूर सुना, रोशनलाल आर्य। लेकिन रोशनलाल आर्य एक नाम नहीं है। रोशनलाल आर्य एक संस्था है जो केवल और केवल बच्चों से प्रेम करती है, बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रही है। और आप विषयों की एक लिस्ट देखिए, एक लंबी सूची देखिए, 50-100 ऐसे विषय हैं जो आज के समय की जरूरत है, जिसे रोशनलाल आर्य घर घर में पहुंचा रहे हैं, बच्चों के पास ले जाए। एक विद्यार्थी एक विषय पर एक भाषण तैयार करता है, वो एक नहीं होता, उसके पीछे उसका प्राध्यापक, उसकी माँ, उसके बाप, उसके बड़ा भाई, उसकी छोटी बहन, सभी उसके साथ जुड़े होते हैं। अगर ओम का उच्चारण घर में यहाँ पे भाषण देने से पूरे घर में हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा परिवार उस ओम का उच्चारण कर रहा है, पूरा परिवार उस धर्म की व्याख्या कर रहा है, पूरा परिवार उस हिंदी भाषा को समझ रहा है। इसलिए आप इस प्रयास को छोटा ना समझें। ये लुधियाना में प्रत्येक स्कूल में ये प्रतियोगिताएं हो चुकी। आज आपने मंच पर से सुना, मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि आर्य जी इस मर्यादा को संगरूर, पंजाब के विभिन्न जिलों में, संगरूर, पटियाला, आपने सुना, अमृतसर, जलंधर और न जाने कहां कहां करवाने जा रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि वो चाहते क्या है? आप लोगों के बीच में समाज में रहने की आर्य परंपराओं का मर्यादित ढंग से उसका आचरण आप बच्चों के बीच में आए। और अंतिम बात जो मुझे आप बच्चों के लिए फिर कहनी है, आप इस डिस्प्ले को देखें ध्यान से, तो इसके कोने में एक बहुत बड़ा महामंत्र लिखा हुआ है। वो महामंत्र है महर्षि दयानंद सरस्वती का बैक टू वेदास। आओ हम वेदा की ओर, वेदास की ओर वापस चले। आओ हम वेदों को दोबारा पढ़ें, आओ हम वेदों को पढ़ें। बच्चे सोचेंगे हमें वेद पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं। जो बच्चे 5वीं 6वीं क्लास तक के हैं, केवल मेरी एक छोटी सी विनती उन बच्चों से, वो जिस भी कमरे में सोते हैं, जिसे आप लोग अपनी भाषा में बेडरूम कहते हैं, अपने मोबाइल को उस कमरे में नहीं ले जाना। छोटी सी बात। या अगर एक ही कमरा है तो अपने बेड के पास मोबाइल को नहीं ले जाना। ले जाना किसको है? कोई एक पुस्तक। महर्षि अगर आज से 100-200 साल पहले आपसे ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि वो कितने दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि बुक से हम कितना दूर होते जा रहे हैं। मैं वेदास तक नहीं पहुंचता। अब वेद हमारे लिए 50 साल की उम्र से ज्यादा वाले लोगों के लिए छोड़ दें, लेकिन बच्चों के लिए अपने पाठ्यक्रम की बुक, 5वीं तक के बच्चे अपने पाठ्यक्रम की बुक अपने सराहने रख के सोए। जब सोने लगे, केवल 2 पंक्तियां, कोई एक पेज, कोई एक आधा पैराग्राफ अपने सिलेबस का, जो आपको पसंद हो, सोशल स्टडी हो, साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, कोई छोटी सी पोएम, कुछ पढ़
लेकिन जो 5वीं से ऊपर की क्लास के हैं उनके लिए करिकुलम से हटकर कोई भी पुस्तक, छोटी से छोटी, जहां धर्म की बात नहीं, जपजी साहब का बहुत छोटा स्वरूप मिलता है, सुखमनी साहब का बहुत छोटा स्वरूप अवेलेबल है। आप लोगों के पास हनुमान चालीसा है, मैं उस लंबी यात्रा में नहीं जाता, सुंदरकांड है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई 2 पंक्तियां श्रीमद् भागवत गीता का इतना सा छोटा सा स्वरूप मिलता है। कोई भी पुस्तक जो आपके करिकुलम की नहीं है, उसकी 2 पंक्तियां, 1 पंक्ति केवल पढ़कर सुने और कोई नहीं। यहां महर्षि दयानंद सरस्वती का बैक टू वेदास का अभिप्राय केवल यही था और कोई अभिप्राय नहीं। कोई इस ज्ञान के पीछे कोई बहुत बड़ी गांठें नहीं है, बहुत सरल भाव में समझाने का प्रयास। और अगर इस तरह विचार नहीं है तो मैं 2-1 छोटी छोटी किताबों के नाम लेता हूं आपको, बड़ी सिंपल, कोई भी इंग्लिश की बड़ी सिंपल किताब, कोई जीके की किताब, कोई जो आपको लगे कि जिस किताब में से 2 पंक्तियां पढ़कर आप थोड़ा सुबह उठते हुए कुछ अच्छा महसूस करें, कुछ मानसिक, आज एक बड़ा सुंदर विषय था, मानसिक रूप से जो लोग बीमार हैं। आप लोग जानते हैं मेरे देश में मानसिक बीमारों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही। मैं उसको किसी प्रतिशत पे नहीं डालता, लेकिन बच्चे आने वाले समय में इसके भयावह परिणाम देखें। आप देखें, हम लोग मानसिक रूप से पहले गुलाम थे, अब धीरे धीरे बीमार होते जा रहे। इन सब चीजों से बचने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती का जो एकमात्र एक पंक्ति का सूत्र है मेरे बच्चों, वो आपने अपने पास रखना है। शिव खेला की एक बुक है, यू कैन विन। यू कैन विन एक बुक आप परचेज कीजिए। माँ बाप से कह रहा हूं, वो अपने बच्चों को किताब खरीद के दें, ऐसी मोटिवेशनल कोई बुक, उसकी एक पंक्ति, उसमें 10-15 पंक्तियों से ज्यादा किसी पेज पे नहीं लिखी हुई, 2 पंक्तियां, 3 पंक्तियां, उसको पढ़ें, माँ बाप भी पढ़ें। किताबें पढ़ना बैक टू वेदास है। किताबें पढ़ना महर्षि दयानंद सरस्वती का स्मरण है। किताबें पढ़ना ईश्वरीय प्रार्थना है। किताबें पढ़ना इस अंतर विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता में भागीदार होना है। और किताबें पढ़ना वास्तव में वेद प्रचार मंडल के साथ जुटा है। मैं पुनः श्री रोशनलाल आर्य जी का, इस संस्था का अभिवादन करता हूँ। आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री संजीव डावर जी, मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर सतीश शर्मा जी, आदरणीय श्री गुरविंदर सिंह जी सरना, उपस्थित अध्यापक वर्ग, अन्य अतिथिगण और प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस संस्था का मेरा 1993 से संबंध है। पब्लिक स्कूल ने मेरे ख्याल लगभग 3-4 बार जो हमारा ग्रुप्स ऑफ कंपटीशन हमारा होता है हर साल, उसमें वो विनर रहे हैं। और एक बार उन्होंने ये ग्रुप्स ऑफ कंपटीशन होस्ट भी किया था। और ये जो प्रतियोगिता है उसके बारे में मुझे अब और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय श्री डावर जी, प्रोफेसर शर्मा जी, माननीय श्री सरना जी ने बहुत विस्तार से इसकी विशेषता क्या है और क्यों करवा रहे हैं ये आपको बता दिया। तो मैं जब स्कूल में आया कि हमें स्कूल लेवल की आप प्रतियोगिता करवाइए, तो मैडम प्रिंसिपल जगप्रीत कौर जी का मैं हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने कहा कि ये इंटर स्कूल आप हमारे स्कूल में करवा सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि इंटर स्कूल होस्ट करोगे तो आपका सारा स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट होगी, बच्चों की होगी, ताकि हमारा मैसेज अधिक से अधिक जाए। और ये बात मैं डावर जी की बात से सहमत हूँ कि हमें खुद नहीं पता कि ये मैसेज किस तरह से कितने लोगों तक जा रहा है। क्योंकि कोई भी स्कूल जिसके यहाँ पे पोजीशन होती है, वो जो अपना वार्षिक विवरण या कोई भी पत्र छपवाते हैं तो उसके अंदर ये लिखा होता है कि वेद प्रचार मंडल की प्रतियोगिता में हमने ये स्थान प्राप्त किया और ये गतिविधि हमने वहाँ पे करवाई। तो ये मैसेज जो अपने आप जा रहा है, मैं अपने आप में कुछ नहीं,
मुझे नहीं पता कि ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, क्यों मैं कर रहा हूँ, इस बात का मुझे कुछ नहीं है। और ना ही मैं इसलिए करता हूँ कि लोग मेरा नाम लें इसके अंदर। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक पैशन है। 38 वर्ष बैंक में जॉब करने के बाद भी, उसके साथ साथ भी मैंने किया कि जो हमारी भारतीय परंपरा है, अर्थात एक्सेप्टेबल टू ऑल, मैं ये किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, धर्म वही है जो सबको स्वीकार्य है। दो चार यहाँ भी है, दो चार अमेरिका में भी है। जितने भी मजहब हैं, संप्रदाय हैं, जिनमें जो भी सत्य बातें हैं वो वेदों के द्वारा ही ली गई है। आज तक वेदों में कहीं परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये जो सत्यार्थ प्रकाश आप देख रहे हैं, 2800 से अधिक ग्रंथों का स्वाध्याय करने के पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसकी रचना की। कोर्ट के अंदर लोग गए, फिर भी कहीं कॉमा या फुल स्टॉप वो नहीं लगवा पाए। तो मैं आप सबका आभारी हूँ, स्कूल की मैनेजमेंट का, आदरणीय सरना जी का, प्रिंसिपल का, स्टाफ का, कि उन्होंने ये कार्यक्रम हमें यहाँ पर आयोजित करने का अवसर प्रदान किया। हमारे जितने भी मेहमान हैं उन सबके यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी दी जा चुकी है, उन सबका भी आभारी हूँ। हमारे जो जजेस हैं वो, मैं ये समझता हूँ कि वेद प्रचार मंडल का एक संरक्षक मंडल है। और आज इस बात की भी मुझे प्रसन्नता है कि जितने हमारे अतिथि आए हैं वो समय से पहले आए हैं। ये हम पूरी कोशिश करते हैं कि 10 बजे का समय तो ठीक 10 बजे वो आरंभ हो जाए। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि यहाँ पर डीआईजी थे मिस्टर राजन गुप्ता, उनका टाइम हमने 9:30 दिया, वो 9:50 पे आए। हमारी पहली आइटम्स एक्सटेंशन लाइब्रेरी में चल रही थी और उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने चीफ गेस्ट की इंतजार किए बिना प्रोग्राम शुरू करवा लिया। एंड मैं यहाँ से ये प्रॉमिस करता हूँ इस मन से, अगर दूसरी बार ये मुझे फिर बुलाएंगे, आई विल रीच देयर डॉट टाइम। और ये हुआ भी। बीजा के अंदर जब मैंने कार्यक्रम कराया वो ठीक समय 10 बजे का था, उनका ठीक 10 बजे हम घड़ी मिला सकते थे, वो हमारे मध्य में पहुंचे। तो माननीय सतीश शर्मा जी का मैं आभारी और बताना चाहूंगा कि डीएवी संस्थाओं का हमें पूरी तरफ से संरक्षण प्राप्त है। वहां पर जो भी वेद प्रचार मंडल के वेद प्रचार के कार्यक्रम होते हैं साप्ताहिक, पूरे पंजाब के, पूरे हिंदुस्तान में डीएवी स्कूलों में हो रहे हैं। आदरणीय पूनम सूरी जी के प्रधान बनने के पश्चात यज्ञ का प्रचार हो रहा है, मुझे भी वहाँ आमंत्रित किया जाता है उसके लिए। और ये हमारी जो प्रतियोगिताएं लगातार हो रही हैं। अभी 17 तारीख को इंटर स्कूल जो ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन था वो पुलिस डीएवी में हुआ। और सरना जी का आपका मैं विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को करवाने का दिया। जो टीचर साहबान आए हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि स्कूल लेवल पर भी ये प्रतियोगिताएं आप कराएं। माननीय डावर जी ने जितना कह दिया उसके बाद कोई शब्द नहीं बचते कि मैं उनका कहूँ। और जो मंच संचालिका है विभा शर्मा जी, इन्होंने अध्यापन का कार्य किया केवीएम स्कूल के अंदर और लगभग 36 किताबें इन्होंने लिखी हैं, कविता भी लिखते हैं, लेखन का कार्य भी करते हैं। तो इनका मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि मंच संचालक अपने आप में ही एक बड़ा कार्य है। तो उसमें जो इन्होंने आज भूमिका निभाई है और भविष्य में भी वो इस प्रकार की भूमिका निभाएंगे, तो मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। और आगे की कार्रवाई जो हमारे आज यहाँ अतिथि आए हैं उनके लिए एक छोटा भी मैं कहूँगा बहुत बड़ा ये सम्मान है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश अगर आप इसको देख लोगे तो ये वेदों का निचोड़ इसमें। अगर हम वेद नहीं पढ़ सकते सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, और ये भी नहीं पढ़ सकते तो आर्य समाज के 10 नियम, पहले 2 नियम परमात्मा के संबंध में, ईश्वर का स्वरूप है, तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है वो है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां वो 5 नियम है जो दूसरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्य को पहचान लें तो ये बहुत बड़ी समाज की, राष्ट्र की एक सेवा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरविंदर पाल सिंह जी प्रिंसिपल है, ये इधर गुरु नानक खालसा गर्ल्स, गुरु नानक खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज के। और इसके साथ जेसी कपूर जी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हैं। राकेश चावला जी मेरे साथ हैं सीनियर मैनेजर। राजेंद्र बत्रा जी आए हैं और पीटीए की प्रेसिडेंट मैडम कमल मोहिनी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कुछ साथी अगर किसी का नाम छूट गया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री वीके जेडी जी, श्री रमन शर्मा, श्री कुलदीप सिंगला जी, श्री अनिल गौतम जी, श्री कमल जुनेजा जी, श्री रविंद्र ढंड जी, डॉक्टर संजीव डावर जी, डॉक्टर सतीश शर्मा जी,
और इनके साथ ही मैं निमंत्रण दे रही हूँ प्रधानाचार्य श्रीमती जगप्रीत कौर जी एवं रोशन लाल आर्य जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया मोमेंटो देकर हमारे मेहमानों का अभिनंदन कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रशंसनीय पुरस्कार के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ दिव्या अरोड़ा, स्नातन विद्या मंदिर स्कूल। इनका था यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व। नंबर 2 है सीरियल नंबर 2। आपने वक्ता होने पर अच्छा दिखाया, बहुत बहुत दिखाया। तीसरा प्रशंसनीय पुरस्कार है सीरियल नंबर 21 प्रियांशु कुमारी, उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो आप ये अपना पुरस्कार ग्रहण करें। तृतीय पुरस्कार के लिए आमंत्रित कर रही हूँ सीरियल नंबर 7 शिवानी कुमारी, चेतन लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल, स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का योगदान। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा बोले आप, बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, जो एक लाइलाज बीमारी भी है और एक गुणकारी भी है, दोनों ही है, लाभ भी है हानि भी है। मेरा ख्याल इतना हिंट काफी है। हेलो, बुला लो, आ जाइए जी। सीरियल नंबर 17 मनीषा, श्री गुरु सिंह सभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोबाइल एंड इंटरनेट का। बहुत बहुत बधाई। प्रथम पुरस्कार के लिए कोई अनुमान? चलो कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं आई, मैं ही बता देती हूँ। हाँ जी, आ जाइए। सीरियल नंबर 16 कविता रावत, जीवन के संस्कारों का महत्व, आपके संस्कार पे कर गए आपके प्रथम आई है। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई और सबका पार्टिसिपेशन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक ध्वनि। नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा कुमारिया शर्मा आज
गुरु नानक खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुज्जर खान कैंपस में खड़ी आपसे बात कर रही हूँ। आज यहाँ पर वेद प्रचार मंडल के द्वारा अंतर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में नैतिकता और चारित्रिक उत्थान की कोशिश थी। आज अलग अलग विषयों पर बच्चों ने अपने विचार प्रकट किए और उनके विचार सुनकर ऐसे लगा जैसे कि एक नए युग का आरंभ होने वाला है और वो नया युग विद्यार्थियों से ही शुरू होगा। जैसा कि रोशनलाल आर्य जी जो कि संस्थापक हैं इस संस्था के, उनके प्रयास रहते हैं अलग अलग स्कूलों में इंटर स्कूल कंपटीशन कराने के, और इन्हीं इंटर स्कूल कंपटीशन के आधार पर बच्चों में संस्कार लाना और उनको सुसंस्कृत करना और उनके संवर्धन के लिए प्रयास करना, ये बहुत उत्तम प्रयास है। और हम हमेशा इस बात की सराहना करेंगे कि जो भी युवा पीढ़ी को हम गुण देना चाहते हैं वो उनके अध्ययन काल में ही होने चाहिए। धन्यवाद। मैं रोशनलाल आर्य, प्रांतीय महासचिव वेद प्रचार मंडल लुधियाना। आप सबको ये मैं बताना चाहूँगा कि वेद प्रचार मंडल युवा वर्ग में भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। हमने स्कूल और कॉलेजों में अंत्य विद्यालय भाषण प्रतियोगिता, अंत्य महाविद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता आरंभ की है, जिसमें हम वैदिक संस्कृति एवं आज की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित विषय जो है स्कूलों को भेजते हैं। इसी संदर्भ में आज गुरु नानक खालसा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुज्जर खां कैंपस मॉडल टाउन लुधियाना में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 24 विद्यालयों ने भाग लिया और उन्होंने अपने अपने विषयों पर प्रस्तुति दी। इस समारोह की अध्यक्षता श्री संजीव डावर, प्रिंसिपल RK आर्य कॉलेज नवा शहर, और इसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर सतीश शर्मा जी जो कि DAV मैनेजिंग कमेटी से जुड़े हुए हैं और वो प्रिंसिपल भी रहे जगरांव, अमृतसर और जालंधर में। श्री गुरविंदर सिंह जी सरना विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। डॉक्टर उषा अवस्थी, प्रोफेसर सरोजनी सैदा, डॉक्टर महिमा खोसला ने निर्णायक की भूमिका निभाई और वेद प्रचार मंडल की ओर से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार वितरित किए। इसके साथ साथ स्कूलों के अध्यापक भी साथ थे और उन्होंने इस प्रतियोगिता की बहुत ही सराहना की है और विश्वास दिलाया है कि भविष्य में इस प्रकार के आयोजन स्कूल स्तर पर भी करेंगे और आपके इस आयोजन में भी भाग लेंगे। धन्यवाद।